Good morning, students. Today I am going to teach you about power resources. It is a part of chapter 3rd, Geography. It is my sixth lecture. Power resources is very important for industry. It is the backbone of industry, and power resources is very important for other sector like agriculture, transportation, communication, industry, and defense purpose. Power resources are classified two groups. First, conventional and non-conventional. Conventional resources are those resources that are used from very long period, but it is very harmful for our pollution, like charcoal, cow dung, petrol, coal, and firewood. Now, recent inventions is very important of non-conventional like sun, wind, and water. Such kind of resources is very important, and nowadays it is used in large scale. Here, I am going to differentiate between conventional resources and non-conventional resources. Conventional resources are charcoal, coal, petrol, and firewood. Conventional resources are sun, wind, and water. Conventional resources are non-recyclable, non-renewable, and non-conventional resources are renewable. Conventional resources are found very pollution, experience very pollution, but non-conventional resources are eco-friendly. Conventional resources are found in some part of the world, but non-conventional resources are found all over the world. देखिए, इसमें मैं आप लोगों को पावर शक्ति संसाधन के विषय में लेक्चर देने जा रहा हूँ। यह हमारा छठा लेक्चर है, ज्योग्राफी का चैप्टर 3 का पार्ट है। पावर रिसोर्सेज, शक्ति संसाधन आज इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा आवश्यक तत्व है। इसके अलावा पावर रिसोर्सेज जो है खेती, डिफेंस, सुरक्षा, यातायात, इंडस्ट्री या कम्युनिकेशन और डिफेंस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। पावर रिसोर्सेज दो प्रकार का होता है, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, परंपरागत, गैर परंपरागत। परंपरागत रिसोर्सेज वह रिसोर्सेज होता है जिससे सदियों से हम इसका उपयोग करते आ रहे हैं, और यह है चारकोल, फायरवुड, लकड़ी, गोबर का केक, कोयला और पेट्रोल। ये परंपरागत पावर शक्ति संसाधन है। आज हाल ही में नॉन कन्वेंशनल, गैर परंपरागत संसाधन का रिसेंट इसका विकास हुआ है नए टेक्नोलॉजी के द्वारा। वह है सूर्य, पानी और हवा के द्वारा संसार एनर्जी बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो रहा है, और यह बहुत इसका व्यापक प्रयोग हो रहा है। आज हम आप लोगों को बता रहे हैं पावर कन्वेंशनल रिसोर्सेज और नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज में क्या अंतर है। कन्वेंशनल रिसोर्सेज जो है यह इसमें फायरवुड, लकड़ी, गोबर का केक, कोयला, पेट्रोल और चारकोल का उपयोग होता है, और नॉन कन्वेंशनल शक्ति संसाधन में आपको सूर्य, पानी और हवा का प्रयोग किया जाता है। यह कन्वेंशनल जो संसाधन है यह रिसाइकेबल नहीं है, यह रिन्यूएबल नहीं है, और नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज है इसको हम रिन्यूएबल कर सकते हैं, पुनः उत्पादन कर सकते हैं। तीसरा है कि यह बहुत पोल्यूशन फैलाता है। कन्वेंशनल रिसोर्स, नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज जो है यह इको फ्रेंडली है, पोल्यूशन नहीं फैलता है। चौथा अंतर है कि पावर कन्वेंशनल रिसोर्सेज जो है वह सभी जगह नहीं उतना पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, लेकिन नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज पूरे विश्व में पाया जाता है। फर्स्ट है
अब है नाउ कोल। कोल इज द वेरी इंपॉर्टेंट conventional resources, and it is found found in sediment under the rocks, and when dead plants and animals also buried under the ground, and after million years they turn into carbon and they make fossil fuels. And there are four types of coal: anthracite, bituminous, lignite or lignite or lignite and peat. But anthracite is very important coal, and it is found most of the country, and it is very important for making commercial and non-commercial usage of resources. In commercial resources, we produce a very large amount of thermal electricity, and it is very polluted and our atmosphere. But most country also produce thermal electricity by coal, and coal is found in India. It is also called black gold. It is found in India, in Jharia, Bokaro, Raniganj and Naveli. And other important producer of coal: United States, China, United Kingdom, Germany, France, Belgium and Canada also. देखिए, कोयला है एक बहुत ही महत्वपूर्ण परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। इसका निर्माण लाखों वर्ष लग जाते हैं बनने में। इसको डेड मृत पौधे और जानवर जो जमीन के अंदर दब जाते हैं और कालांतर में उनमें परिवर्तन होता है और फॉसिल फ्यूल्स के रूप में वे बन जाते हैं। इसको ज़मीन से निकाला जाता है और यह 4 प्रकार का होता है: बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट और पिट। इसमें एंथ्रासाइट जो है वह बहुत अच्छा क्वालिटी है, उसके बाद बिटुमिनस है। कोयला विश्व के सभी देशों में नहीं पाया जाता है, कुछ महत्वपूर्ण देश हैं जहाँ पर कोयला पाया जाता है, जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट किंगडम, और इसमें है फ्रांस, बेल्जियम, कनाडा और जर्मनी है, साउथ अफ्रीका है। और भारत में कोयला पाया जाता है वह है झरिया, बोकारो, रानीगंज और नवेली। यह बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और कोयला का मांग जो है आज बढ़ा हुआ, पहले से बढ़ा हुआ है, क्योंकि इससे कमर्शियल और नॉन कमर्शियल क्षेत्रों में इसका प्रयोग ज़्यादा होता है। और खाना बनाने के लिए गाँव में कमर्शियल यूज़ किया जाता है। और आज के डेट में इसको आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, क्योंकि लोहा को गलाने में इसका बहुत बड़ा हाथ होता है। और इसका हम थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, तापीय विद्युत उत्पन्न करते हैं, लेकिन इसका जो प्रदूषण होता है बहुत ज़्यादा होता है, और इसलिए इस पर थोड़ा बहुत देश इसका प्रयोग कम कर रहे हैं और नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज को ज़्यादा उत्पन्न दे रहे हैं। उसके बाद है, नेक्स्ट है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज ऑल्सो called gold, black gold. Petroleum is also known as black gold, and it is found in the most country. That country is very rich in resources like Middle East, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Qatar, Kuwait, etc. and United States of America, United Kingdom, Canada, Canada and Algeria, Russia. Such countries are very large producer of petroleum. And in India, petroleum are found near Assam, Digboi, Gujarat, Krishna Kaveri
एरिया एंड बॉम्बे हाई। देखिए पेट्रोल जो है एट द बाई प्रोडक्ट वी व्हेन यू क्रूड ऑयल ऑल्सो रिफाइन इन फैक्ट्री there are many byproducts also produced like paraffin, wax, kerosene, diesel and lubricating oil। देखिए पेट्रोल जो है दूसरा महत्वपूर्ण उत्पादक कन्वेंशनल रिसोर्सेज है। इसको आज के डेट में इसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। यह मिडिल ईस्ट में ज़्यादा पाया जाता है। यह सभी देशों में तेल यह पाया नहीं जाता है, लेकिन मिडिल एशिया के मिडिल ईस्टों में यह 3 देशों में पर्याप्त मात्रा में पेट्रोलियम पाए जाते हैं। उनमें है सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, कतर, कुवैत इत्यादि। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, बेल्जियम, रसिया, इन देशों में पर्याप्त मात्रा में पेट्रोलियम पाए जाते हैं। और भारत में भी हाल ही में बहुत व्यापक रिसर्च हुआ है, खोज हुई है, जिसमें कृष्णा कावेरी के नदी के क्षेत्रीय भाग और बॉम्बे हाई, असम के डिगबोई, गुजरात, अंकलेश्वर क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में पेट्रोलियम उत्पादन होता है। थैंक यू।